راستے میں سعید احمد کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ پتہ چلا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے انہیں مخاطب کیا تو وہ شکایت بھرے لہجے میں کہنے لگے، تم اس طرح خاموش چل رہے ہو جیسے ہمارا درمیانی فاصلہ تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ دماغی قوتوں کے سامنے تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں، تو فاصلہ مٹا دو، باتیں کرو۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ بہت سی سوچیں پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ ابھی میں ماسٹر یوشے کی خبر لینا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا۔ یہ کہہ کر میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا وہی حال تھا۔ کبھی وہ روما کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیل منڈو کا سراغ ملا یا نہیں۔ وہ میرے متعلق سوچتے سوچتے الجھ جاتا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر سعید احمد کی طرف واپس آ گیا اور انہیں مخاطب کیا، سعید صاحب، ماسٹر یوشے خیریت سے نہیں ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، میرے عشق میں بیمار ہو گیا ہے۔ مجھ سے ملنے کے لیے وہ اس طرح تڑپ رہا ہے کہ آپ کی محبوبہ بھی آپ کے لیے اتنا نہیں تڑپتی ہوگی۔ وہ جھینپ کر ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، ہاں بھائی، چوٹ کر لو، اب تو میں کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، باخدا میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے تو خوشی ہے کہ کسی لڑکی کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو گئی۔ آپ اس کے متعلق بتائیں، اگر اعتراض نہ ہو تو۔ کیسی بات کرتے ہو فرہاد، بھلا تمہیں بتانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر تم تو اچھے خاصے شیطان ہو، نہیں بتاؤں گا تب بھی میرے راز تک پہنچ جاؤ گے۔ ویسے میں بہت ہی پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی تم سے سمر کا ذکر کروں گا، اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی وہ پریشانیاں دور کر دو۔ آپ کی محبوبہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ میں غیروں کے کام آتا ہوں تو کیا اپنی بھابھی کے کام نہیں آؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پریشانیاں کیا ہیں۔ سعید احمد بتانے لگے، سمر میری ایک دور کے رشتے کی عزیزہ ہے۔ تقریباً 10 برس بعد اچانک ہی اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں پہلی ملاقات میں اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک بچی تھی اور میں بھی نوجوان نہیں تھا۔ اب عمر بدل گئی ہے اور نگاہیں بھی بدل گئی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نگاہوں کی دوری کے باوجود دلوں کی قربت سے اسے پہچانتا ہوں۔ اس کی سوتیلی ماں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی سوتیلی ماں نے کہا، تم شاید وکیل احمد کے بیٹے ہو جو لاہور میں رہا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے والد اور والدہ کے متعلق بہت سی باتیں بتانے لگی۔ میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ درست فرما رہی ہیں، میں ان کا ہی بیٹا ہوں اور میرا نام سعید احمد ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے پتا چلا کہ سمر کے والد شیخ برکت علی، جو ایک کروڑ پتی تاجر ہیں، پچھلے 1 سال سے پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سمر میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا، ایک تمہیں ہی اپنے باپ سے محبت نہیں ہے، وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ میرا دل بھی دکھتا ہے مگر میں اپنے آنسو کسے دکھاؤں؟ اب ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو وہ ذہنی طور سے صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تمہارے آنسو انہیں واپس نہیں لا سکتے، بس چپ کرو۔ ان کی ڈانٹ سن کر سمر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا کہ سمر کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہیں۔ پھر چھٹیوں کے دوران میری سمر سے بے تکلفی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ تب سمر نے مجھے بتایا کہ اس پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب سے اس کی سوتیلی ماں آئی ہے ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی ہے کہ شیخ برکت علی کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ جب برکت علی اسے بیاہ کر لائے تھے تو وہ اس وقت ایک نوجوان بیوہ تھی۔ اپنے ساتھ ایک 7 برس کا لڑکا لے کر آئی تھی۔ اب وہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے، جو قانونی طور سے ناممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ بار بار شیخ برکت علی سے کہتی رہتی ہے کہ سمر کی شادی ان کے لڑکے سے کر دی جائے، لیکن یہ رشتہ نہ تو سمر کو پسند ہے اور نہ ہی اس کے والد اس رشتے کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہر طرف سے ناکام ہو کر خاموش بیٹھ گئیں۔ سمر نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ بظاہر خاموش تھیں، مگر اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کرنے کا انہوں نے بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا۔ جب سمر 15 برس کی تھی تو چند بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا اور ایک ویران سے مکان میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس کی عزت کو کھلونا نہیں بنایا۔ چند ہی گھنٹے بعد پولیس کی ایک جماعت نے اس مکان پر چھاپا مارا اور اسے وہاں سے برآمد کر لیا۔ بدماش وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا۔ سمر کہتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا، لیکن اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سمر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اچانک ہی شیخ برکت علی کا دماغ چل گیا۔ وہ اچھے بھلے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق 1 گلاس دودھ پیا، پھر بستر پر لیٹنے کے لیے گئے تو اچانک ہی بے چینی سے ادھر ادھر بستر پر لوٹنے لگے۔ پھر انہیں پکڑ کر وجہ پوچھی گئی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جو ان کے قریب جاتا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے۔ سمر کی امی نے ملازموں سے کہا کہ وہ انہیں پکڑ کر رسی وغیرہ سے باندھ کر رکھیں۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا۔
और अब तक वो पागल खाने में मौजूद हैं। मैंने सईद अहमद से पूछा, उनके पागलपन के सिलसिले में समर क्या कहती है। समर इस सिलसिले में भी अपनी सौतेली माँ पर शुबा कर रही है। वो कहती है कि रात को सोने से पहले उन्होंने जो दूध पिया था उसमें कोई ऐसी दवा मिलाई गई है जिसने उनके दिमाग को उलट दिया है। वो दूध पीने के बाद ही पागल हो गए थे। मैंने पूछा, समर की सौतेली माँ अपने शौहर से क्यों दुश्मनी करेगी? सईद अहमद ने जवाब दिया, वही जायदाद का झगड़ा हो सकता है। मैंने तायीद में सर हिलाकर कहा, हाँ, इस तरह बात कुछ समझ में आती है। बहरहाल समर की सौतेली माँ क्या चाहती है ये मैं मालूम कर लूँगा। आप इत्मीनान रखें, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई मुजरिम अपना चेहरा नहीं छुपा सकेगा। सईद अहमद ने एहसानमंदी से कहा, मैं जानता था फरहाद तुम इस सिलसिले में ज़रूर समर के काम आओगे। मैं ये खुशखबरी समर को सुनाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आप समर से मेरा जिक्र कर चुके हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा जिक्र कहाँ नहीं करता हूँ। तन्हाई में होता हूँ तो तुम्हें याद करता रहता हूँ, महफिल में बैठता हूँ तो तुम्हारा जिक्र ज़रूर करता हूँ। तुम्हारी तारीफ करते वक्त मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना मुकाम बुलंद हो रहा है। मैंने समर के सामने तुम्हारी बड़ी तारीफें की हैं। मैंने किसी कदर परेशान होकर कहा, इसका मतलब यह है कि आपने समर के सामने मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का जिक्र भी किया है? वो ज़रा गड़बड़ा कर बोले, नहीं तो मैंने टेलीपैथी के सिलसिले में समर को कुछ नहीं बताया। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ फरहाद, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो तुम सोच के जरिए किसी वक्त भी सच तक पहुँच जाओगे। यूं समझो कि मैं तुम्हारी जहानत और दिलेरी की तारीफ किया करता हूँ। बातों के दौरान बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया। हम जेहलन पहुंचकर एक बहुत ही स्टैंडर्ड के होटल के सामने रुक गए। मैंने बिल मुंडू की कार से बाहर आते वक्त कार की चाबी इग्निशन में छोड़ दी, खिड़कियों के शीशे में नहीं चढ़ाए। अलबत्ता सईद अहमद ने अपनी कार को लॉक कर दिया। फिर हम दोनों हल्का सा नाश्ता करने के लिए होटल में दाखिल हो गए। होटल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 4-5 मेज़ों के अतराफ कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। हम दोनों एक मेज़ के अतराफ आकर बैठ गए। सईद अहमद बेरे को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर देने लगे। इतने में एक शख्स होटल के दरवाजे पर नजर आया। वो मामूली सा आदमी था, मेरी तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सकता था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कार से उतरते वक्त अकब आईने में उसे देखा। वो होटल के बाहर खड़ा हुआ सिगरेट के कश लगा रहा था और बड़ी खामोशी से बिल मुंडू की कार को देख रहा था। जब मैं इस कार को लॉक किए बगैर होटल में दाखिल होने लगा तो इसके करीब से गुजरते वक्त मैंने उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात देखे। उस वक्त मैंने फिर भी कोई खास तवज्जो ना दी। अब वो होटल के दरवाजे पर आते ही ठिठक गया था। सबसे पहले उसने मुझ पर नज़र डाली, फिर मुझसे नज़रें मिलते ही वो तेज़ी से पलटकर दूर एक मेज़ की जानिब चला गया। इस मेज़ के अतराफ 2 खुशपोश उधेड़ उम्र के आदमी बैठे हुए खाने के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। वो इस शख्स को आते देखकर खामोश हो गए। इतनी दूर से कोई भी उनकी बातें नहीं सुन सकता था, लेकिन मेरे लिए उनकी बातें सुन लेना नामुमकिन नहीं था। इस शख्स ने आने वाले को मुखातिब किया, क्या बात है जाफ़र, क्या कोई खास खबर है? जाफ़र एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठने से पहले उसने दूर मेरी जानिब नज़र दौड़ाई, मगर अब मैं उसकी जानिब नहीं देख रहा था। सर झुकाए उनकी सोच के जरिए उनकी एक एक हरकत को और एक एक बात को सुन रहा था और समझ रहा था। जब जाफ़र ने मुझे अपनी तरफ से गाफिल पाया तो वो अपने साथी से मुखातिब होकर कहने लगा, कुंवर साहब, हमें अभी और इसी वक्त कार मिल सकती है। कैसे? कुंवर नाम के आदमी ने हैरानी से पूछा। जाफ़र उसे बताने लगा और हमारी तरफ इशारा करने लगा कि इस मेज़ पर जो आदमी बैठे हैं वो दोनों अपनी अपनी कार में आए हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स ने कार को लॉक नहीं किया और कार की चाबी इग्निशन में छोड़ दी है। ये कहकर उसने कुंवर से पूछा, क्या ये हमारे लिए बेहतरीन मौका नहीं है? कुंवर ने अपने दूसरे साथी को मुखातिब करते हुए कहा, क्यों असद, तुम्हारा क्या ख्याल है? असद ने कहा, ख्याल नेक है। वो दोनों अभी होटल में दाखिल हुए हैं। अभी बहरे ने उनके लिए नाश्ता भी नहीं लगाया है। वो यहाँ काफ़ी देर बैठेंगे, हमें इसी वक्त यहाँ से उठ जाना चाहिए। कुंवर ने उसी वक्त बेरे को बुलाया ताकि वो बिल ले आए और वो लोग बिल अदा करके फ़ौरन ही वहाँ से जा सकें। मैंने सईद अहमद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सईद साहब, कार छोड़ने का मसला खुद ब खुद हल हो रहा है। उन्होंने पूछा, वो कैसे? मैं हंसते हुए उन्हें सारी बातें बताने लगा। सईद अहमद ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यह तो ठीक है फरहाद, हम कार को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते थे, अब उसे चुराने वाले पैदा हो गए हैं, लेकिन हमें यह मालूम करना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए किसी दूसरे की कार यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मैंने सर हिलाकर उनसे कहा, आप थोड़ी देर खामोश बैठे रहें। इतने में बैरा हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने नाश्ते की प्लेट पर झुकते हुए कुंवर नामी आदमी से सोच के जरिए राब्ता कायम किया। वो शख्स बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा था कि यहाँ से इस कार को ले जाना कहाँ तक मुनासिब है। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ, मुझे ये कदम उठाने से पहले अपनी प्लानिंग पर अच्छी तरह शुरू से आखिर तक गौर कर लेना चाहिए, वरना जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। कुंवर की सोच ने कहा, काम उसी वक्त बिगड़ेगा जब हम यहाँ से कार ले जाते वक्त कार वाले की नज़रों में आ जाएंगे।
इस कार वाले के अलावा किसी दूसरे को इस बात का इल्म नहीं होगा कि हम किसकी कार ले जा रही हैं। दूसरे लोग यही समझेंगे कि हम अपनी कार में बैठकर जा रही हैं। नहीं, ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं। किस्मत से ये कार हाथ आ गई है तो इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ से एक टैक्सी हासिल करेंगे और उस मिल ऑनर अमजद अली का पीछा करेंगे। वो ठीक 10 बजे बैंक से 50,000 रुपये निकालने के बाद अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने मिल की तरफ जाएगा। वीरान रास्ते में हम उसकी कार के सामने रुकावट बन जाएंगे। फिर टैक्सी ड्राइवर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद टैक्सी में बैठकर आगे निकल जाएंगे। आगे हमारी अपनी कार मौजूद होगी। हम वहाँ टैक्सी को छोड़ देंगे और अपनी कार में बैठकर वापस पिंडी चले जाएंगे। मगर अब टैक्सी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इस तरह एक बेचारे टैक्सी ड्राइवर की जान बच जाएगी। सिर्फ अमजद अली हमारे हाथों हलाक होगा। हाँ, यही मुनासिब है। हमें फ़ौरन ही यहाँ से इस कार को लेकर निकल जाना चाहिए। उसकी सोच पड़ने के बाद मैंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा। 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। उन्हें ठीक वक्त पर एक कार मुफ्त हासिल हो रही थी और वो इसे अपनी खुशनसीबी समझ रहे थे। मैं सईद अहमद को वो तमाम बातें बताने लगा। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि हमारी कार ले जाकर वो सिर्फ डाका नहीं डालेंगे बल्कि एक बेगुनाह इंसान को कत्ल भी करेंगे, तो सईद अहमद ने कहा, फरहाद, ये मुनासिब नहीं है। उन्हें अमजद अली का पीछा करने से बाज रखना चाहिए और किसी तरह इन मुजरिमों को कानून के हवाले करना चाहिए। मैंने कहा, अभी तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ मंसूबा बनाया है। जब तक ये जुर्म के लिए कोई कदम ना उठाएं और हम इन्हें रंगे हाथों ना पकड़ें, उस वक्त तक ये कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते। सईद अहमद ने बहस शुरू कर दी। तुम ये कहना चाहते हो कि इन्हें डाका डालने और अमजद अली को कत्ल करने का मौका देना चाहिए, फिर हम इन्हें गिरफ्तार कर सकेंगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं इन्हें अमजद अली तक पहुंचने नहीं दूंगा, मगर इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर हम खामोशी से सर झुकाकर नाश्ता करने लगे। इतनी देर में वो तीनों अपनी मेज से उठकर होटल से बाहर चले गए और मैं कुंवर की सोच के जरिए दिमाग की स्क्रीन पर देखता जा रहा था कि वो बाहर क्या कर रही हैं। उन्होंने जाफ़र को बदस्तूर होटल के दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहा ताकि वो हम पर नजर रखे। जब कुंवर बील मुंडू की कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और उसके पास वाली सीट पर उसका साथी असद आ गया, तो फिर जाफ़र भी दरवाजे से पलटकर उनके पास आ गया और कार का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। इसके बैठते ही कुंवर ने कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करता हुआ दूर निकलता चला गया। जाफ़र पिछली सीट पर बैठा बार बार पलटकर होटल की जानिब देख रहा था। जब वो होटल की नज़रों से ओझल हो गया तो उसने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, कुंवर साहब, सब खैरियत है। उन दोनों को इस बात का इल्म नहीं हो सका है कि उनमें से एक की कार गायब है। वह तीनों खुश फहमी में मुब्तला होकर एक बैंक के सामने पहुंचे। जाफ़र उतरकर बैंक के अंदर गया। वहां उसने सेठ अमजद अली को देखा जो नोटों की गड्डियां गिन रहे थे। उन्हें देखकर वो फौरन वापस आ गया। फिर कार की पिछली सीट पर बैठते हुए उन्हें बताया कि अमजद अली मैनेजर के सामने बैठे हुए हैं और रुपए गिन रहे हैं। यह अंदाज़ा करने के बाद कुंवर ने कार स्टार्ट की। फिर उसे ड्राइव करता हुआ एक वीरान इलाके पर जाने लगा। कुछ आगे जाने के बाद वो रुक गए। कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और वहां बैठे हुए अमजद अली की कार का इंतजार करने लगे। मैं सईद अहमद को थोड़ी देर बाद रिपोर्ट सुनाता जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें अमजद अली की कार आती हुई नजर आई। फिर वो कार तेजी से गुजरती करीब से निकल गई। कुंवर ने भी कार स्टार्ट की और आगे जाने वाली कार का पीछा करने लगा। कुछ आगे जाकर शायद अमजद अली को किसी खतरे का एहसास हुआ था या पता नहीं क्या बात थी कि उन्होंने कार की रफ्तार तेज कर दी। कुंवर ने भी रफ्तार तेज कर दी। मैं उसकी सोच के जरिए समझ रहा था कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उसके अतराफ बड़े बड़े दरख्त हैं। मैंने अचानक ही उसकी सोच में चीख कर कहा, स्टीयरिंग दाएं तरफ मोड़ दो। एक जहनी झटका पहुंचते ही कुंवर का हाथ बहक गया। कार दाएं तरफ मुड़ी और सड़क से नीचे जाते हुए एक दरख्त से टकरा गई। मैंने चीखों और कराहों की आवाज़ें सुनी। इसके बाद कुंवर का जहन तारीकियों में डूब गया। उस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो बेहोश हो गया है या हादसे में हलाक हो गया है। बहरहाल बिल मुंडू की कार सही आदमियों के हाथों में सही जगह पहुंच गई। नाश्ता करने के बाद मैं सईद अहमद के साथ होटल से बाहर आया और उनकी कार की पिछली सीट पर बैठते हुए बोला, आप मुझे थोड़ी देर पिछली सीट पर सोने का मौका दें, मेरा नींद से बुरा हाल है। सईद अहमद ने ड्राइविंग सीट को संभालते हुए कहा, मुझे तुम्हारी थकन का एहसास है। ठीक है, तुम पिछली सीट पर आराम करो, मैं मरी पहुंचकर तुम्हें नींद से बेदार करूंगा। ये कहकर उन्होंने कार स्टार्ट की। फिर उसे पिंडी के रास्ते पर मोड़कर आगे बढ़ने लगे। मैंने एक सिगरेट सुलगाकर आराम से लेटने के बाद फौरन आराम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मास्टर यूशे एक नए अंदाज से मेरे मुतल्लिक सोच रहा था और यह शुबा कर रहा था कि कहीं मैं भी टेलीपैथी का इल्म तो नहीं जानता हूँ। वो अपने शुबा पर किस हद तक कायम है, मैं ये मालूम करने के लिए उसके जहन में झांकने लगा। इस वक्त मास्टर यूशे दूसरे 3 मास्टरों के साथ किसी कमरे में बैठा हुआ था और उनसे मेरे ही मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। 2 मास्टरों को तो मैं पहले ही जानता था, एक मास्टर यूशे, दूसरा मास्टर दानियाल जो एंजेला का बाप था।
और आग के शोलों में नहाने का हैरत अंगेज तमाशा दिखाता। वो अपने मास्टरों के ग्रुप में आग का देवता कहलाता था। उनकी गुफ्तगू के दौरान बाकी 2 मास्टरों से भी गायबाना तारुफ हो गया, क्योंकि वो गुफ्तगू करते वक्त एक दूसरे को नाम लेकर मुखातिब कर रहे थे। उनमें से तीसरे मास्टर का नाम साइमन था। उस वक्त मास्टर साइमन कह रहा था, मास्टर यूशे, तुम्हारी रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि फरहाद अली बेहद खतरनाक इंसान है। तुम्हारे जैसा टेलीपैथी जानने वाला भी अब तक उसे अपने काबू में नहीं कर सका। मुझे तुम्हारा शुबा दुरुस्त नजर आता है कि फरहाद अली टेलीपैथी से वाकिफ है। यही वजह है कि तुम वहां अपने आलयकारों को हुक्म देते हो और वो तुम्हारे आलयकारों के जरिए हुक्म को सुन लेता है। दूसरे लफ्जों में तुम्हारी सोच को पढ़ लेता है और तुम्हें इतना मौका नहीं दे रहा है कि तुम किसी जरिए से उसकी सोच तक पहुंच सको। हमें किसी न किसी तरह तुम्हारे इस शुबे की तस्दीक करनी चाहिए। मास्टर यूशे ने कहा, मगर हम तस्दीक किस तरह करेंगे? अगर वो टेलीपैथी जानता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त भी मेरे जरिए हम सबकी गुफ्तगू सुन रहा है और हमारी मनसूबाबंदियों से वाकिफ होता जा रहा है। इस शैतान तक पहुंचने के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसे हमारे किसी भी प्रोग्राम का इल्म ना हो। मास्टर साइमन ने इसकी तायद की। हाँ, उसके मुतल्लिक को गुफ्तगू करते वक्त मेरे जहन में यह बात नहीं रही थी कि अगर वो टेलीपैथी जानता है तो हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सोच के जरिए वो मास्टर दानियाल की और मेरी सोच तक पहुंच चुका है, क्योंकि तुम्हारे साथ हम दोनों अब तक गुफ्तगू करते रहे हैं। अब यही एक रास्ता रह गया कि चौथा मास्टर हमारी इस गुफ्तगू में बिल्कुल हिस्सा ना ले। जिस तरह फरहाद गूंगा बना हुआ है, उसी तरह चौथा मास्टर भी गूंगा बना रहे और अपने आप को सिर्फ फरहाद से नहीं हमसे भी दूर रखे और एक गुमनाम इंसान की तरह फरहाद तक पहुंचने की कोशिश करे। मास्टर साइमन की राय से सभी ने इत्तफाक किया। उसकी बात सुनते ही सबकी निगाहें चौथे मास्टर की तरफ उठ गईं। चौथा मास्टर अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा था। मैं उसकी सोच के जरिए उसकी निगाहों तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने काले शीशों वाली ऐनक पहन रखी थी। उसका आधा चेहरा दाढ़ी और मूंछों से छुपा हुआ था। वो उनके मशवरे के मुताबिक एकदम से गूंगा बन गया। मैं इस चौथे मास्टर तक नहीं पहुंच सकता था। मास्टर दानियाल ने खुश होकर कहा, मास्टर साइमन, तुमने बर वक्त एक बहुत ही उम्दा मशवरा दिया है। अब हमें इस तरह प्रोग्राम बनाना चाहिए कि फरहाद ख्याल ख्वानी के जरिए भी हमारे किसी प्रोग्राम को ना समझ सके। ऐसी सूरत में मैं मास्टर यूशे से ये पूछूंगा, क्या वो कल की फ्लाइट से फरहाद के मुल्क में जा रही हैं या अपना प्रोग्राम मनसूख कर रही हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का इल्म फरहाद को हो चुका होगा। मास्टर यूशे ने मुस्तहकम लहजे में कहा, अगर उसे प्रोग्राम का इल्म होता है तो होने दो, मैं ज़रूर जाऊंगा। अगर वो टेलीपैथी जानता है तो मैं देखूंगा कि वो इस इल्म के समंदर में कितना डूबा हुआ है। मेरा दावा है कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे नहीं टकराएगा। अगर टकराना होता तो अब तक खुलकर सामने आ जाता। वो मुझसे छुपता फिर रहा है। इससे उसकी ख्याल ख्वानी की कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है। आप सब इत्मीनान रखें। वहां पहुंचते ही जब भी उसका पता चला, मैं उसे अपने इल्म की मुट्ठी में बुरी तरह जकड़ लूंगा। फिर वो तिलमिलाता रह जाएगा, लेकिन मेरी शैतानी सलाहियतों से निजात हासिल नहीं कर सकेगा। मास्टर साइमन ने हाथ उठाकर कहा, अच्छी बात है, आप जो करना चाहते हैं वो अपने तौर पर करें। हम इस सिलसिले में मजीद बहस नहीं करेंगे। हमारे चौथे मास्टर को अपने तौर पर जो कुछ करना होगा वो करेगा, और वो जो करेगा उसका हम 3 मास्टरों को भी पता नहीं होगा, क्योंकि हम तीनों फरहाद की ख्याल ख्वानी की जद में आ चुके हैं। इसीलिए हम सब चौथे मास्टर के प्रोग्रामों से बाखबर रहा करेंगे। बस आज की मीटिंग बर्खास्त होती है। उनकी बातें सुनकर मेरी नींद भी उड़ गई और होश भी उड़ गई। अब वो ऐसी प्लानिंग कर चुके थे कि मैं सोच के जरिए भी उनके मनसूबाबंदियों को नहीं समझ सकता था। सिर्फ मास्टर यूशे के मुतल्लिक इतना इल्म था कि वो कल की फ्लाइट से किसी वक्त भी यहाँ पहुँच रहा है। वो चौथा नादीदा मास्टर क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है ये मैं नहीं समझ सकता था। मुझे मुकम्मल तौर से अंधेरे में रखने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तदबीर सोच ली थी। मैं बहुत देर तक अपने तौर पर यह समझने की कोशिश करता रहा कि वो चौथा मास्टर मेरे खिलाफ किस किस्म के इक़दामात करेगा। वो कौन है, कैसी सलाहियतों का मालिक है कि वो चौथा मास्टर बना हुआ है। उसने अपनी शख्सियत को बिल्कुल ही छुपा लिया था और किसी वक्त भी अंधेरे की तीर की तरह कहीं से भी सनसनाता हुआ आ सकता था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मुझे याद आया कि मास्टर यूशे ने यहाँ पहुँचने के लिए 2 सीटें रिजर्व कराई थीं। वो दूसरी सीट किसके लिए है? क्या उसी चौथे मास्टर के लिए? ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता था, मगर यह भी हो सकता था कि वो दूसरी सीट चौथे मास्टर ही के लिए हो। बहरहाल मुझे कल तक एक खतरनाक शैतान का इंतज़ार करना था। दूसरा खतरनाक शैतान जो मास्टर यूशे से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा था, वो चौथा मास्टर था। मुझे उसका भी इंतज़ार करना था। इस तरह करना था जिस तरह हर इंसान मौत का इंतज़ार करता है। कार तेज़ रफ्तारी से भागी जा रही थी। सईद अहमद की नज़रें विंड स्क्रीन के साथ लगी हुई थीं। वो समझ रहे थे कि मैं सो रहा हूँ, मगर मैं जाग रहा था।
ऐसे वक्त मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आ गया, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाकई मौत के लिए एक दिन मुकर्रर होता है, फिर इस फिक्र में जागते रहने से फ़ायदा क्या है। मैंने तमाम ख्यालात को जहन से झटक कर सोने का इरादा कर लिया और आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत देने लगा कि उस वक्त तक मैं गहरी नींद सोता रहूं जब तक कोई मुझे आवाज़ देकर ना उठाए। यह हदायत देने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद में डूबता चला गया। मेरे दोस्त सईद अहमद ने मुझे झिंझोड़ झिंझोड़ कर उठाया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कुछ देर तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ। फिर जहन से धुंध साफ होने लगी, नींद का खुमार उतर गया। तब मैंने महसूस किया कि मैं इसी तरह कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ हूँ। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। सईद अहमद ने कहा, तुम तो घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा साबित कर रही हो। यहाँ मरी पहुंचकर मैंने तुम्हें नींद से बेदार करना चाहा, मगर नींद की हालत में देखकर मुझे तुम पर बड़ा प्यार आया। मैंने सोचा पता नहीं कितनी रातों से तुम भागते फिर रहे हो, पता नहीं कभी तुम्हें इतने इत्मीनान और सुकून से सोने का मौका मिला भी है या नहीं। मैंने सोचा जिस हालत में तुम पड़े हुए हो, अगरचे ये आरामदेह नहीं, फिर भी तुम सुकून से हो, तुम्हारी नींद में मदाखलत नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कार को लॉक करके अपने कमरे में चला गया। कई बार मैं यहाँ आकर कार की खिड़की से झांककर तुम्हें देखता रहा कि शायद तुम बेदार हो गए हो, मगर तुमने तो जैसे ना उठने की कसम खा रखी थी। ये देखो शाम के 4 बज रहे हैं। मजबूर होकर मुझे उठाना पड़ा। मैंने अंगड़ाई लेकर बदन को तोड़ते मरोड़ते हुए कहा, ये आपने अच्छा किया कि मुझे इतनी देर तक सोने का मौका दिया। यहाँ काफ़ी सर्दी है, अगर मुझे गुस्ल करने के लिए गर्म पानी मिल जाए तो रही सही थकन भी दूर हो जाएगी। आओ कमरे में चलो, तुम्हारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम है। गुस्ल भी करोगे, गर्मा गर्म खाना भी खाओगे और कॉफ़ी भी पियोगे, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। कम ऑन। मैं उनके साथ कार से उतरकर बाहर आ गया। उनकी कार एक छोटे से कॉटेज के सामने खड़ी हुई थी। सईद अहमद ने बताया कि यह कॉटेज समर के वालिद बरकत अली साहब की मलकियत है। मैं उनके साथ कॉटेज के अंदर गया तो सबसे पहले एक उधेड़ उम्र की औरत से सामना हुआ। सईद अहमद ने उसे तारुफ कराया, फरहाद ये समर की वालदा साहिबा हैं, मैं पहले ही तुम्हारे सामने इनकी काफ़ी तारीफ़ें कर चुका हूँ। ये सुनकर के सईद अहमद इन मोहतरमा की पहले भी तारीफ़ कर चुकी हैं। वो खुशी से खिल गईं। उन्होंने कहा, फरहाद सईद अहमद ने तुम्हारा गायबाना तारुफ कराया है, फिर मैंने कार की खिड़की से झांक कर तुम्हें देखा है। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, अच्छी कंपनी रहेगी, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। उसकी उम्र 45 बरस है, किसी तरह कम ना होगी, मगर वो हम उम्र सहेलियों की तरह बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुझे कंपनी देने की बात कर रही थी। मैंने भी उसकी नफ्सियाती कमज़ोरी को देखते हुए कहा, ये सईद साहब आपके शौहर को अंकल कहते हैं, इस रिश्ते से मैं आपको आंटी कैसे कहूँ? आप तो इतनी कम उम्र लगती हैं कि किसी तरह से आंटी जैसी मुअम्मर खातून नज़र ही नहीं आती। मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो मेरी बात सुनकर खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, मुझे भी आंटी वांटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, हमें तो दोस्तों की तरह वक्त गुजारना चाहिए। मेरा नाम फ़िरोज़ा है, तुम मुझे फ़िरोज़ा कह सकते हो। मुझे तकल्लुफ़ बिल्कुल पसंद नहीं। सईद अहमद फ़िरोज़ा को नागवारी से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आंटी मैं तो बचपन से ही आपको आंटी कहता हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है, मैं आपको फ़िरोज़ा नहीं कहूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि फरहाद बहुत थका हुआ है, आप ज़रा इजाज़त दें तो ये गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाए, फिर हम बातें करेंगे। हाँ क्यों नहीं, फ़िरोज़ा ने चहकते हुए कहा। फरहाद मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करती रहूँगी, जल्दी आ जाना, फिर हम तफरीह का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने बड़ी लगावट से कहा, आपकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश है, मगर गुस्ल करना ज़रूरी है, बस ये गया ये आया। मैं सईद अहमद के साथ उनके कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। सईद अहमद ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, फरहाद क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम तो आंटी से ऐसी बातें कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। खैरियत तो है, इरादा क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, इरादा नेक है, मैं उनसे दोस्ती नहीं करूँगा तो किस तरह समर के काम होऊंगा? तुम्हारी महबूबा की खातिर मुझे एक बूढ़ी औरत से इश्क करना होगा। मेरी बात पर वो बेख्तियार कहकहा लगाने लगे। मैंने उनसे पूछा, आप हंसते ही रहेंगे या अपनी उनसे भी मुलाकात कराएंगे? वो मोहतरमा कहाँ हैं जो आपका दिल अपने सीने में लिए बैठी हैं? कौन, समर? हाँ वही। आप अनजान क्यों बनती हैं? मैं समर को ही पूछ रहा हूँ। उन्होंने ज़रा करीब आकर राजदारी से कहा, मैं इस घर में यानी आंटी की मौजूदगी में समर से ज़रा दूर रहता हूँ। आंटी जानती है कि मैं इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर हूँ। अगर वो मुझे समर से बेतकल्लुफ़ी से बातें करते देख लेंगी और उन्हें कुछ साजिश करनी भी होगी तो एक इंटेलिजेंस वाले के सामने नहीं करेंगी। इसलिए मैं भी आंटी का एतमाद हासिल करता हूँ ताकि उनकी चालबाजियों से बाखबर रहूँ। ये सब कुछ तुम्हारे आने से पहले था। मैं एहतियात के तौर पर समर से दूर रहता हूँ। अब तुम आ गए हो, आंटी से तुम्हारा इश्क जल्द ही रंग लाएगा। ये कहकर वो खुद ही हंसने लगे। फिर गुसल खाने की तरफ इशारा किया और बोले, गुसल खाने में चले जाओ, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। 15 मिनट के बाद मैं आ जाऊँगा। ओके ओके। मैं उनकी तरफ से पलटकर गुसल खाने में दाखिल हो गया।
अंदर पहुंचकर एकदम ठिठक गया। एक बहुत ही हसीन लड़की गुसल खाने में मौजूद थी। वो गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाकर इस काबिल बना रही थी कि मैं गुसल कर सकूं। मुझे देखते उसने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टे का आंचल रख लिया और हाथ उठाकर कहा, भाईजान आदाब अर्ज। मैंने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और किस रिश्ते से मुझे भाईजान कह रही हैं? वो नजरें झुकाकर जेरे लब मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम समर है। मैंने उसे देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो समर, लेकिन एक शर्त पर तुम मुझे भाईजान कह सकती हो। उसने सर उठाकर पूछा, कैसी शर्त? यही कि अगर तुम मुझे भाईजान कहोगी तो मैं तुम्हें भाभीजान कहूंगा। वह फौरन ही पलटकर बाथरूम के दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई। वो 2 कमरों का मुश्तरका बाथरूम था। बाथरूम का दूसरा दरवाजा उसके कमरे में खुलता था। उसने अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजे को बंद कर लिया, यानी वो मुझसे छुप गई। बेचारी ये नहीं जानती थी कि आहनी पर्दों में रहकर भी कोई मुझसे छुप नहीं सकता। मैं दिमाग की स्क्रीन पर उसे शर्माते और ले जाते देख रहा था। भाभीजान का लफ्ज उसे बहुत दूर तक ले गया। फिर मैं गुनगुनाते हुए गुसल करने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद गुसल से फारिग होकर और सईद अहमद के कुर्ता और पाजामा पहनकर जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो कमरे में सईद अहमद मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके सामने टेबल पर खाने की प्लेटें सजी हुई थीं। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, चलो आओ, खाना ठंडा हो रहा है, पहले पेट पूजा कर लो, फिर काम की बातें होती रहेंगी। मैंने फिरोजा आंटी के कमरे की जानिब देखते हुए कहा, क्या खाने में फिरोजा को शरीक नहीं करोगे? सईद अहमद ने बेजार होकर कहा, यार क्यों बोर करते हो? वो मोहतरमा यहाँ आएंगी तो हम खाने के दौरान भी कोई काम की बात न कर सकेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत जल्द भूल जाती हैं कि मुझसे बातें करने के लिए जुबान हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सईद अहमद उछलकर खड़े हो गए और कहने लगे, खुदा की कसम तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मैं भूल जाता हूं कि तुम दुश्मनों के दरमियान रहकर भी मुझसे बातें कर सकते हो। मैं अभी आंटी को बुलाता हूं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। इतने में समर अपने कमरे से निकलकर सालन की एक डिश लेकर वहां पहुंच गई। जब वो मेज पर सालन की डिश रखने लगी तो मैंने शरारत से पूछा, क्यों भाभी जान, आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगी? वो एकदम से शर्माकर सर पर आंचल रखते हुए और किसी हद तक अपना चेहरा छुपाते हुए हया से लड़ती हुई आवाज में बोली, भाईजान खुदा के लिए आप अभी ऐसा मजाक न करें। अम्मी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही उसकी सौतेली अम्मी यानी फिरोजा लहराती बल खाती हुई कमरे में आ गई। अच्छे मूड में आई थी, मगर समर को देखते उसके चेहरे पर जरा सी नागवारी के तासुरात जाहिर हुए। मेरी मौजूदगी का एहसास करते हुए जल्दी संभल गई और कहने लगी, हेलो फरहाद, तुमने बड़ा इंतजार कराया। हालांकि अभी डिनर का वक्त नहीं हुआ है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह से भूख की तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दिल को दिल से राह होती है। चूंकि मुझे भूख लग रही थी इसलिए आप भी भूख महसूस कर रही हैं। आइए खाना शुरू कीजिए। आओ समर, तुम अलग क्यों खड़ी हो? हम सब मिलकर खाएंगे, बाकी बातें करेंगे तो खाने का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। मेरे असरार करने पर फिरोजा को भी कहना पड़ा, हाँ समर, जब फरहाद कह रही हैं तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। चलो बैठ जाओ। हम सब सेंटर टेबल के तरफ बैठकर खाने लगे। फिरोजा मेरे ही सोफे पर आकर बैठ गई। अगर इस बूढ़ी का बस चलता तो मेरी गोद में आकर बैठ जाती। खुदा का शुक्र है कि वो दूसरों की मौजूदगी का एहसास कर रही थी। सईद अहमद ने ठीक ही कहा था कि उसकी मौजूदगी में हम बातें नहीं कर सकेंगे। खाने के दौरान मैंने कई बार कोशिश की कि मैं सईद अहमद से सोच के जरिए गुफ्तगू करूं, मगर फिरोजा की जुबान थी कि फिसलती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लुकमे भी चबा रही थी और बोलती भी जा रही थी। समर के हाथों का पकाया हुआ खाना बेहद लजीज था, मगर इस लज्जत में फिरोजा ने तलखियां पैदा कर दी। गलती मेरी ही थी। पहली मुलाकात में उसे इश्क कर बैठा, मगर अब क्या हो सकता था। इश्क बड़े ही कड़े मरहलों से गुजर रहा था और मुझे इन मराहिल से गुजरना ही था। अल्लाह अल्लाह करके खाना खत्म हुआ। कॉफ़ी का दौर चला। फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैंने ख्वामखा जमाई लेते हुए कहा, सईद साहब, आपने मुझे अच्छी तरह सोने नहीं दिया, इतनी जल्दी नींद से बेदार कर दिया। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। फिरोजा ने हैरत से चीख कर कहा, कमाल करते हो फरहाद, इस वक्त 5:30 बजे हैं, शाम का सुहाना वक्त है, बाहर इतना खूबसूरत माहौल है। ऐसी डूबी हुई शाम में कमरे की 4 दीवारी में कैद रहना बहुत बड़ी हमाकत है। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, चलो अभी हम बाहर चलती हैं। वो तो सचमुच गले पड़ गई। मैंने कहा, आप मेरा लिबास देख रही हैं? मैंने सईद साहब का कुर्ता और पायजामा पहना हुआ है। मेरे पास जो लिबास था वो बाथरूम में पड़ा हुआ है। घर से बाहर आपके साथ मैच करने के लिए एक अच्छे लिबास की जरूरत है और वो मेरे पास नहीं। मेरी बात सुनते ही फिरोजा ने फौरन ही अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, तुम तो गैरों की तरह बातें करते हो। मेरे होते हुए भी क्या तुम्हें लिबास की कमी होगी? क्या तुम अपना लिबास मुझे पहनने के लिए दोगी? ये बात मैंने इतनी मासूमियत से पूछी कि सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। वो भी हंसते हुए बोली, नहीं, तुम अभी एक शॉल लपेट कर मेरे साथ किसी दुकान पर चलो, मैं तुम्हारे आगे मलबूसात के ढेर लगा दूंगी। चलो अब आओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कहते ही वो मेरा हाथ पकड़कर उठ गई। मुझे भी उठना पड़ा।
मैंने सईद अहमद से कहा, सईद साहब, मैं फिरोज़ा के साथ जा रहा हूँ, क्या आप लोग भी साथ चलेंगे? फिरोज़ा ने जल्दी से कहा, इन्हें क्यों तकलीफ देते हो, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, फिर तफरीह का प्रोग्राम बनाएंगे। वो समझ गया कि वो मेरे साथ तनहा जाना चाहती है, इसलिए मैं फिरोज़ा से छुपकर सईद अहमद को आंख मारी, फिर पलटकर फिरोज़ा के साथ चलते हुए कॉटेज से बाहर आ गया। कार में बैठते वक्त उसने मुझे शॉल लपेटने के लिए कहा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कार के शीशे चढ़ाते हुए कहा, बस यूं ही ठीक है, शीशे चढ़ा दिए हैं, अब इतनी सर्दी नहीं रहेगी, हम किसी करीबी दुकान से ही कपड़ा खरीद लाएंगे। ये कहकर मैंने कार स्टार्ट की और माल रोड की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी पास वाली सीट पर मोटी आसामी बैठी हुई थी। मैं दौलत हासिल करने के सिलसिला में ऐसी मोटी मुर्गियों को ज़रूर हलाल करता हूँ। मैंने बज़ाहिर शर्मिंदगी से कहा, फिरोज़ा, मेरा यहाँ अचानक ही आना हुआ, बैंक से पैसे लाने का वक्त नहीं मिला। उसने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी, फौरन ही बोली, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ मैंने सुना है शेख बरकत अली साहब करोड़पति हैं, उनकी बेगम हो, जाहिर है कि तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी होगी। लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर भी सोचो ना, ये हमारी पहली मुलाकात है। वो खालिस आशिकाना लहजे में बोली, हाँ पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे मैं सदियों से तुम्हें जानती हूँ और सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब यह इंतज़ार ख़त्म हो गया है फरहाद, वादा करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहते ही उसने स्टीयरिंग की तरफ हाथ बढ़ाया और बड़ी मोहब्बत से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उस वक्त मेरी जेब भी खाली थी और मुझे आइंदा के लिए कहीं से दौलत हासिल करनी थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी सादत से बर्दाश्त किया, बल्कि उसकी तारीफ करने लगा और उसे नौजवान लड़कियों से भी नौजवान साबित करने के लिए कहने लगा, ये समर क्या शादीशुदा है, चेहरे से तो बड़ी उम्र वाली लगती है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई, फिर ज़रा सा मुंह बनाती हुई बोली, बहुत ही बेहया लड़की है, पता नहीं कैसे कैसे लड़कों से दोस्ती करती रहती है, इसलिए मुंह पर फिटकार बरसती है। तुमने खुद ही देख लिया, वह वक्त से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही है। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ तुम दोनों को एक साथ देखकर यूं मालूम होता है जैसे सगी बहनें हैं। आप छोटी बहन है, वो बड़ी बहन है, तुम माँ बेटी नहीं लगती। लेकिन मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, जब तक वो तुम्हारे करीबी आसपास रहेगी, लोग तो यही कहेंगे ना कि वो तुम्हारी बेटी है और तुम माँ हो। और जब माँ का लफ्ज़ आता है तो तसव्वुर में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। देखो, बुरा ना मानना, मैं तुम्हारे हुस्न और जवानी से मुतासिर होकर ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें समर के करीब नहीं रहना चाहिए। मुझे तो वो बुरी तरह खटकती है। देखो, मैं पहली मुलाकात में तुम्हारी बेटी से मुतल्लिक ऐसी बात कह रहा हूँ, तुम बुरा तो नहीं मान रही हो? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, तुम तो बड़ी सच्ची और खरी बातें करते हो, तुम वही कह रही हो जो मैं महसूस करती हूँ। बाय गॉड, तुम्हें देखते ही मैंने महसूस किया था कि बड़ी मुद्दत के बाद मुझे कोई मेरा हम मजाज मिल रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो मुझे किस तरह खटकती रहती है। तुमने बड़े पते की बात कही है कि मेरी उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो, लोग तो मुझे उसकी माँ कहेंगे, तो ये कैसी गलत बात है। वो कमबख्त मरती भी नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कोसने से तो वो मरेगी नहीं, मारने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं तुम कैसी हो, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मैं तुम्हारे किसी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने खुश होकर मेरे बाजू को दोनों हाथों से थाम लिया, जरा और खिसक कर करीब आ गई और बड़े ही राजदाराना लहजे में कहने लगी, मोहब्बत का जादू इसी तरह सर पर चढ़कर बोलता है। बस मैंने समझ लिया कि वाकई तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो। पहली मुलाकात में इतनी सच्ची और खरी बातें कोई नहीं करता जैसी कि तुम कर रहे हो। मैं क्या बताऊं फरहाद, मैं इस कमबख्त समर की वजह से बहुत परेशान हूं। अब मैं इसके बाप से नाता तो नहीं तोड़ सकती। उसे नाता तोड़ने का मतलब ये होगा कि करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल जाएगी। क्या ये दानिशमंदी होगी? मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। करोड़ों की जायदाद महज एक लड़की की वजह से छोड़ देना बहुत बड़ी हमाकत होगी। तुम किसी तरह उसे अपनी जिंदगी से दूर क्यों नहीं कर देती? उसने गहरे राजदाराना लहजे में पूछा। कैसे दूर करूं? जैसे भी हो सके। रास्ते में अगर कोई कांटा हो तो उसे उठाकर एक तरफ फेंक देना चाहिए। इस तरह फेंकना चाहिए कि वो फिर रास्ते में ना आ सके, वरना अपना ही पांव जख्मी होता है। फरहाद, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो और कितनी गहरी बातें करते हो। तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरह उसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकती हूँ। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, माय स्वीट फिरोजा, ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर पता नहीं क्यों मैं तुमसे अपनी कोई बात नहीं छुपा सकता। शायद ये तुम्हें नहीं मालूम कि मैं माजी में मुजरिमाना जिंदगी गुजार चुका हूँ। मेरे हाथों 2 कत्ल हो चुके हैं। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारी खातिर उसे भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वो हैरानी और खुशी से मेरा मुंह तकने लगी, फिर कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। मेरा ये ख्याल गलत नहीं हो सकता। मैंने सोच समझकर तुम्हारा इंतखाब किया है। मगर फरहाद, मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी जिससे तुम कानून की गिरफ्त में आ जाओ।
तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरा हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती। मैं खुद ही उसे रास्ते से हटा दूंगी। मैंने खाली से काशिक जैसे अंदाज में कहा, नहीं फिरोजा, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी हरकत करो जिससे कानून की गिरफ्त में आ जाओ। तुम भी मेरे लिए एक नायाब हीरा हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता। मैं इतनी नादान नहीं हूं फरहाद कि कानून की गिरफ्त में आ जाऊं। हम दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने ही समर के बाप को पागल बनाकर पागल खाने भेज दिया। अब मैं समर को भी पागल बना देना चाहती हूँ। उसके बाप को पागल खाने गए हुए 1 साल का अरसा हो चुका है। उसकी बेटी भी पागल हो जाएगी तो कुछ लोग मुझ पर शक जरूर करेंगे, लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि उसका बाप पागल था। ये पागलपन बेटी को विरसे में मिला है। वो भी एक खास उम्र को पहुंचकर पागल हो गई है। अगर दुनिया ना समझे तब भी ये कौन साबित कर सकता है कि मैंने उसे पागल बनाया है? हाँ, कोई ये साबित नहीं कर सकेगा। तुम वाकई पागल बनाना जानती हो। देखो ना मैं किस तरह तुम्हारे लिए पागल बन रहा हूं। मेरी बात सुनते ही वो हंसने लगी, फिर हंसते हुए बोली, ये पागलपन तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर मैं दुश्मनों को इस तरह पागल बनाती हूं कि उन्हें देखकर दूसरे दुश्मन इबरत हासिल करते हैं। मगर तुम किस तरह पागल बनाती हो? मेरे पास एक दवा है। मैंने एक डॉक्टर से बड़ी खुशामदीद करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे हासिल किया। इस दवा का नाम टूफरानील है। इसकी 2 गोलियां पीसकर और दूध में मिलाकर पिला दी जाएं तो पीने वाले का दिमाग फौरन गड़बड़ हो जाता है। उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। मैंने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, फिर तो ये बड़े काम की दवा है। तुम्हारी दरियाफ्त का जवाब नहीं। इस तरह तो दुश्मनों को हलाक करने की जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ उन्हें पागल बनाकर ही काम निकाला जा सकता है। हाँ, अचानक एक डॉक्टर से मेरे ताल्लुकात हो गए थे। वो कहते कहते एकदम से मोहतात हो गई। वो बातों की धुन में किसी डॉक्टर से अपने ताल्लुकात का जिक्र करने वाली थी, फिर जल्द ही संभल कर बोली, ताल्लुकात का मतलब यह है कि हमारे दरमियान मुंह बोली रिश्तेदारी थी। वो भी यही कहते थे कि मैं बहुत कमसीन हूं और बूढ़े बरकत अली से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं। वो डॉक्टर भी बूढ़े थे, मैं उन्हें अंकल कहा करती। ये कहकर वो खामोश हुई तो उसका दिमाग सोचने लगा। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी जुबान फिसलते फिसलते रह गई। अगर डॉक्टर से उसके ताल्लुकात की नौयत वाज़ेह हो जाती तो पता नहीं मैं उसके मुतल्लिक क्या सोचता। मैंने उससे पूछा, क्या वो दवा अब भी तुम्हारे पास है? हाँ, मैं इसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करती हूँ। मैंने इसे अपनी अलमारी में लॉक कर रखा है। यहाँ मरी आते वक्त उसे अपने साथ ले आई हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं इस दवा को दूध में या किसी खाने की चीज़ में मिलाकर समर को खिला सकूंगी, मगर यहाँ पहुंचकर जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम बनाया उस दिन इत्तफाक से सईद अहमद यहाँ आ गया। तुम तो जानते ही हो, वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। उसकी मौजूदगी में अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेरे यार से डर रही हो? वो तो यारों का यार है। मैंने तो उसी के दोस्ती के साए में 2 कत्ल किए हैं। उसने मुझे कानून की गिरफ्त से साफ बचा लिया था। फिर रोज़ा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मैंने कई बार सोचा कि सईद को अपने एतमाद में ले लूं, लेकिन हिम्मत ना हुई। मैंने महसूस किया है कि वो समर में दिलचस्पी ले रहा है। ऐसी सूरत में तुम ही बताओ कि मैं उसकी मौजूदगी में समर के खिलाफ कोई साजिश कैसे कर सकती हूँ? तुम मर्द की कमजोरियों को नहीं समझती हो। अगर वो समर में दिलचस्पी ले रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो उससे शादी करेगा। मैं सईद अहमद को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो आशिक मिजाज जरूर है, लेकिन बीवी के नाम पर एक रोग नहीं पालना चाहता। तुम उसे जरा ढील दो ताकि वो समर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। 2-4 रातें गुजारने के बाद उसका दिल भर जाएगा और वो खुद ही उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे वक्त पर मैं उसे वो जहन मफलूज कर देने वाली दवा ले जाकर दूंगा और उसे मशवरा दूंगा कि वो समर को पागल बनाकर उससे पीछा छुड़ा ले। वो मारे खुशी के लरजते हुए बोली, क्या वो तुम्हारा मशवरा मान लेगा? तुम नहीं जानती कि हम दोनों एक दूसरे के कितने गहरे राजदार हैं। तुम वो दवा मुझे दो और ये नेक काम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी बात यह कि उसे समर के साथ आज़ादी से मिलने का मौका दो। इस तरह हम दोनों का भी फायदा है। अगर वो दोनों अपने आप में मगन रहेंगे तो हमारी तन्हाई में मदाखलत नहीं करने आएंगे। वो बूढ़ी अदाओं से बोली, तुम बड़े वो हो, अपने मतलब की बात पहले सोचते हो, मगर इसमें शक नहीं कि तुम जबरदस्त प्लानिंग करते हो। ठीक है, मैं कॉटेज में पहुंचकर दवा की वो शीशी तुम्हें दे दूंगी। माल रोड की एक दुकान पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली। वहां से वो मेरे लिए ढेर सारे कपड़े खरीदना चाहती थी। मैंने सिर्फ 2 रेडीमेड सूट पसंद किए। वह मुझे नकद रकम भी देना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित करने की कोशिश की कि मैं उसकी दौलत से नहीं बल्कि हुस्न शबाब से मुतासिर होकर उसके करीब आ रहा हूँ। मैं उसके एक पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं खुद इतना दौलतमंद हूँ कि पैसों को अहमियत नहीं देता हूँ। वो सचमुच मुझसे मुतासिर होती रही। 1 घंटे बाद जब हम कॉटेज वापस जाने लगे तो उस वक्त मैंने उसकी सोच को पढ़ लिया। वो कार की तन्हाई से फ़ायदा उठाकर मेरे बाजू में आना चाहती थी। मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सोच के जरिए सईद अहमद से कहा, सईद साहब,
मुझे बूढ़ी महबूबा से बचाइए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुसीबत में फंस गए हो? हाँ, फंसने वाला हूँ। इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए फिरोजा बड़े सब्र से मेरा बाजू थामे बैठी हुई है, मगर सोच रही है कि कॉटेज के सामने मैं जैसे ही कार रोकूंगा वो गले का हार बन जाएगी। सईद अहमद ने हंसते हुए यकीन दिलाया कि वो बाहर आ रही हैं। जब मैंने कॉटेज के सामने पहुंचकर कार रोकी तो वहां सईद अहमद को देखते ही फिरोजा फीकी पड़ गई और बड़ी नागवारी से मुंह बनाकर बोली, ये कमबख्त बाहर सर्दी में क्यों खड़ा हुआ है? मैंने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, सईद साहब शायद मेरा इंतजार कर रही हैं। तुम अभी कार से उतरने के बाद कॉटेज में जाकर इनसे लगावट की बातें करो और इन्हें समर से मिलने की खुली इजाजत दो। जब वो दोनों एक कमरे में जाएंगे तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, अच्छी बात है, मगर तुम भूल ना जाना कि मैं तुम्हारे इंतजार कर रही हूं। मैंने दिल पर हाथ रखकर कहा, भला तुम भी कोई भुलाने वाली चीज हो। वो खुश होकर कार से उतर गई और मेरे मशवरे के मुताबिक सईद अहमद के पास जाकर बोली, सईद मेरे साथ आओ। मैंने सोच के जरिए कहा, फिरोजा के साथ चली जाइए, वो तुम्हारे लिए समर से मिलने के रास्ते हमवार करेगी। वो फिरोजा के साथ कॉटेज के अंदर चले गए। मैं भी कार को लॉक करने के बाद सीधा समर के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर ऐसी ताजगी आ गई जैसे एक डूबने वाली को बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। कुछ रस्मी बातें करने के बाद उसने कहा, सईद साहब आपकी बेहद तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे डैडी को पागल खाने से ले आएंगे। क्या ये मुमकिन है? इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं अगर इंसान करना चाहे। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत जल्द आकर मिलेंगे। क्या उनका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, वो तुम्हें पहचान लेंगे। कैसे? आप उनसे कोई बात ना छुपाएं, सच सच बताएं कि आप कोई अमल जानते हैं। सईद साहब कह रहे थे कि आप हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आमिल होते हैं वो किसी पर अपनी हकीकत जाहिर नहीं करते। जाहिर करने से इल्म की तासीर खत्म होने लगती है। क्या तुम चाहोगी कि मेरा इल्म मुझसे छिन जाए? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आप सिर्फ मेरे डैडी को मुझसे मिला दें। मैं उसे यकीन दिलाकर उस कमरे में आ गया जो मेरे और सईद अहमद के लिए मखसूस था। सईद अहमद उस वक्त फिरोजा के कमरे में थे और फिरोजा उन्हें समझा रही थी, मैं तुम्हारी आंटी हूं, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूं। अगर समर तुम्हें पसंद है तो बिला झिझक उससे मिला करो, वो मेरी सौतेली बेटी है। मगर मैं तुम्हें सगों से ज्यादा चाहती हूँ। तुम पर समर जैसी हजारों लड़कियां कुर्बान कर सकती हूँ। वो समझा रही थी और सईद अहमद खुश हो रहे थे। फिरोजा ने उन्हें जल्द ही अपने कमरे से रुखसत कर दिया ताकि मैं उसके कमरे में आ सकूं। वो मेरे इस्तकबाल के लिए आईने के सामने जाकर अपने बदन पर खुशबू स्प्रे कर रही थी। मैंने सोच के जरिए उसे अच्छी तरह समझा दिया कि कल सुबह उसे बैंक में जाकर 2 लाख रुपए ले आना चाहिए। तो इसके बाद मैंने उसकी सोच में कहा, अब मुझे वो दवा निकाल कर अपने सरहाने रख लेनी चाहिए। फरहाद आएगा तो मैं दवा की शीशी उसके हवाले कर दूंगी। वो अपने सूटकेस से वो दवा निकाल कर बिस्तर पर आ गई, फिर उसे सरहाने रखकर आराम से लेट गई। आराम से लेटते वक्त उसके दिमाग में ये बात आई कि लेटने का अंदाज ऐसा हो जैसे एक शगुफ्ता कली फोम के साफ सुथरे बिस्तर पर खिलने के इंतजार में पड़ी हो। इस ख्याल से वो लेटे ही लेटे इधर उधर पहलू बदलने लगी। मैं थोड़ी देर तक उसकी बूढ़ी अदाओं से महफूज होता रहा। फिर मैंने उसकी सोच के जरिए कहा, अभी मुझे आंख बंद करके लेटे रहना चाहिए ताकि मैं उससे अनजान बनी रहूं। ये देखती रहूं कि वो कमरे में आकर किस अंदाज में मोहब्बत का आगाज करता है। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, उफ कितनी थकन महसूस हो रही है। जी चाहता है कि अब आंख ना खुले, इसी तरह लेटी रहूं और आहिस्ता आहिस्ता सो जाऊं। मैं सो रही हूं, मैं सोती जा रही हूं। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो सो गई। उसके सो जाने के बाद मैं भी अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और मास्टर यूशे की खबर लेने लगा। मास्टर यूशे जाग रहा था और अपने बेडरूम में बैठा हुआ विस्की पी रहा था। बस वो रोमो को झूठी तसल्लियां दे रहा था। कल वो यहां पहुंचने वाला था। कल से मेरे लिए नई मुसीबतों का आगाज होने वाला था। नए तूफान सर उठा रहे थे और मैं आराम से लेटा हुआ था क्योंकि मेरी मुट्ठी में यही थोड़ा सा वक्त रह गया था। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोपहर को बहुत देर तक सोता रहा था। मैं बिस्तर से उठकर पहले फिरोजा के कमरे में गया। वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसके तकिया के नीचे हाथ डालकर दवा की शीशी निकाल ली और उस पर एक नज़र डालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसके कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आया। बाहर अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। मैं बिल्कुल तन्हा था। इस वक्त कोई मुझसे मिलने वाला ना था और ना ही मैं सोच के जरिए किसी से मिलना चाहता था। जब सुकून नसीब हो रहा था तो सो जाना ही मुनासिब था। लिहाजा मैंने अपने जहन को हदायत की कि सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल जाए। अपनी आदत के मुताबिक इस किस्म की हदायत देकर मैं गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे फिरोजा 2 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक की तरफ चली गई। मैंने भी सोचा कि अच्छा है वो तन्हा ही जाए। उसके जाने के बाद मैंने सईद से कहा,
आप इसी वक्त समर को साथ लेकर पागल खाने की तरफ चले जाएं और वहां पहुंचकर समर के वालिद से सामना करें, उनसे बातें करें। आप उनसे बातें करेंगे और उनकी आंखों में झांकेंगे तो मैं आपके जरिए उनके दिमाग तक पहुंच जाऊंगा और ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि मैं टेलीपैथी के जरिए उनका इलाज कर सकता हूं या नहीं। सईद अहमद ये सुनकर खुश हो गए। वो उसी वक्त समर के पास गए और फौरन ही उसे तैयार होने के लिए कहा। आध घंटे के बाद वो दोनों वहां से रुखसत हो गए। उस वक्त फिरोजा वहां पहुंच गई थी और दरवाजा खोलने के बाद मेरा इंतजार कर रही थी। उसने 2 लाख रुपए की मुख्तलिफ गड्डियों को अपने सूटकेस में फैला कर रख दिया और बिस्तर पर फैलकर मेरे मुतल्लिक जवान लड़कियों के से अंदाज में सोच रही थी। मैंने कॉटेज की तरफ बढ़ते हुए उसकी सोच में कहा, मेरी उम्र क्या होगी? उसकी सोच ने कहा 45 बरस, मगर मैं 45 की नहीं लगती। वो फौरन ही बिस्तर से उठकर आईने के सामने आ गई और हर जाविये से अपना जायजा लेने लगी। आईने के साथ साथ मैं भी उसे फरेब दे रहा था। मैं 16 बरस की हूँ। वो आईने के सामने झिझकती हुई बोली, नहीं, ये तो सफ़ेद झूठ हो जाएगा, फरहाद यकीन नहीं करेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, यहाँ से बाहर निकलने के बाद कितनी ऐसी नौजवान मिल सकती हैं जो तंजिया अंदाज में मेरे चीखते हुए मेकअप को देखते हैं। मैं उनका गिरबान पकड़कर उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं 16 बरस की हूँ। मैं मुसलसल उसकी सोच में चीखने लगा और वो बदहवासी में चीखने लगी, मैं 16 बरस की नहीं हूँ तो फिर मैं बूढ़ी हूँ? नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? औरत कभी 16 बरस से आगे नहीं बढ़ती। अगर बढ़ जाए तो बुढ़ापे का ख्याल आसेब की तरह पीछा करता है और जवान होने के लिए 16 बरस की उम्र बेहद लाजमी होती है। उसकी सोच ने थक हार कर कहा, हाँ, मैं 16 बरस की हूँ। मैंने फिर उसे पागलपन के लिए उकसाया। मैं बाहर जाकर दुनिया वालों को यकीन दिलाऊंगी कि मैं जवान हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। वो बेख्तियार बाहर जाने के लिए घूम गई। मेरी खामोशी के वक्फे में उसने अपने कदमों को बाहर जाने से रोकना चाहा, मगर मैं रह रहकर उसके दिमाग को झंझोड़ रहा था। पागलपन की हालत में वो कॉटेज को खुला छोड़ गई। मैं कॉटेज में दाखिल होकर उसके कमरे में आया, उसके सूटकेस को खोला और एक छोटी सी अटैची खाली करके उसमें नोटों की गड्डियां रखने लगा। नोटों की गड्डियां तय दर तय सजाने के बाद मैंने उस पर अपना एक सूटकेस रख दिया। फिर उस अटैची को लेकर कॉटेज से बाहर आ गया। इस दौरान मैं फिरोजा के दिमाग में हलचल मचाता जा रहा था। वो कार ड्राइव कर रही थी। पिंडी पहुंचने तक मैंने फिरोजा से ज़हनी राब्ता कायम रखा। वो सचमुच पागल हो गई थी। कभी चीख रही थी, कभी कह लगा रही थी। अब वो खुद को नहीं समझ रही थी कि वो कौन है और कितने दौलतमंद ताजिर की बीवी है। वो मासूम समर को दवा के जरिए पागल बनाना चाहती थी, मगर हालात ने उसे दवा के बगैर ही सचमुच पागल बना दिया। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी हकारत से उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने पिंडी पहुंचकर इंटरकॉन में ही एक कमरा हासिल किया। मुझे मालूम था कि मास्टर यूशे भी इसी होटल में आकर क्याम करेगा और रोमा का कमरा तो पहले ही वहां रिजर्व था। मैंने उसके बॉडीगार्ड को देखा जिससे बरसों रात मैंने रोमा के कमरे में नस्वार की डिब्बियां ली थी। वो मेरे सामने से गुजरने के बाद भी मुझे पहचान ना सका। मैं कमरे में अटैची रखने के बाद डाइनिंग हॉल में आ गया। फिर खाने का ऑर्डर देने के बाद सईद अहमद के जहन में झांकने लगा। सईद अहमद को मेरी हदायत के मुताबिक समर के साथ पागल खाने जाना चाहिए था, मगर इस्लामाबाद से गुजरते वक्त उन्होंने सोचा कि अपना एक फ़र्ज़ अदा करते जाएं, यानी वो इंटेलिजेंस के दफ्तर जाकर उस माइक्रोफिल्म को एक सीनियर ऑफिसर के हवाले करना चाहते थे। इसीलिए वो इस वक्त इंटेलिजेंस के दफ्तर में बैठे हुए थे और एक सीनियर अफसर से कह रहे थे, मैं एक माह की छुट्टी पर हूँ, कल एक माइक्रोफिल्म मेरे हाथ लगी है, मैं अभी ड्यूटी पर जाना नहीं चाहता, इसलिए ये माइक्रोफिल्म आपके हवाले कर रहा हूँ, आप मुझे इसकी रसीद दे दें। सीनियर ऑफिसर ने उस फिल्म को सेफ में रखने के बाद वसूली की एक रसीद लिख दी। इतने में वहां एक मातिहत ने आकर सईद अहमद से कहा, सर, यहाँ के थाने का इंचार्ज आपसे मिलना चाहता है। सईद अहमद ने कहा कि उसे यहाँ भेज दिया जाए। मातिहत बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक थानेदार वहां आया। उसने सलाम करने के बाद कहा, यहाँ के तमाम थानों में पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर से इतला भेजी गई है कि 4042 नंबर की एक कार चोरी हो गई है और उसका मालिक भी लापता हो गया है। कार के मालिक का नाम बिल मुंडू है। वो इटली का बाशिंदा है। पहले वो कराची से पिंडी आया, फिर अपनी भतीजी रोमा के साथ पेशावर गया। रोमा ने ये रिपोर्ट लिखवाई है और पुलिस वालों के पीछे चीखती फिर रही है कि उसके अंकल और उसकी कार का पता चलाया जाए। ये बातें सुनकर सईद अहमद अंदर ही अंदर घबराने लगे। सईद अहमद ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए थानेदार से पूछा, आप इस सिलसिले में मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आप यहाँ तशरीफ रखें। थानेदार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमें बिल मुंडू की वो कार जेहलम के एक नवाही इलाके में मिली है। वो कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई थी। अगली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी हादसे के वक्त ही मर गए। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया है। उसका नाम जाफर है। जाफर से हकीकत उगलवाई गई है कि वो कार इन लोगों ने कहां से हासिल की। थानेदार ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी।
जाफर ने बयान दिया है कि उन लोगों ने डकैती के मकसद के लिए वो कार जेहलम के एक होटल के सामने से हासिल की। उस होटल में 2 शख्स अपनी अपनी कार में आए। एक शख्स बिल मुंडू की कार नंबर 4042 में था, दूसरा शख्स कार नंबर 7332 में था। अभी मैंने इस दफ्तर के बाहर वही 7332 नंबर की कार खड़ी हुई देखी है। पूछने पर मालूम हुआ कि उस कार के मालिक आप हैं। अब आप ही हमें बता सकती हैं कि बिल मुंडू की कार नंबर 4042 को जेहलम तक ड्राइव करने वाला आपका वो साथी कौन है? सईद अहमद जरा देर के लिए चकरा गए कि क्या जवाब दें। चक्कर तो मुझे भी आ रहे थे। मुझे पुलिस वालों का इतना डर नहीं था, क्योंकि सईद अहमद उनसे निपट लेते। मुझे तो मास्टर यूशे की तरफ से खतरा था। मैंने फौरन ही उस शैतान के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। उफ, मैं भी बाज़-औक़ात कैसी हमाकतें करता हूँ। मैं 2 लाख रुपए हासिल करने और फिरोज़ा को पागल बनाने के सिलसिले में इस कदर मसरूफ़ हो गया था कि सिर्फ 7 घंटे तक मास्टर यूशे से गाफिल हो गया। मैं समझ रहा था कि वो आज रात को किसी वक्त पहुंचेगा, मगर इस वक्त उसका जहाज़ पिंडी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था और वो पेशावर के पुलिस अफसरों से लेकर इस्लामाबाद के पुलिस अफसरों तक सबके जहन से छलांग लगाता हुआ इस थानेदार के जहन में आकर बैठ गया था और अब उसके जहन से निकलकर सईद अहमद के जहन में झांक रहा था। मैं सोचता ही रह गया कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनी सी देर में मास्टर यूशे बाजी ले गया। उसने फौरन ही सईद अहमद की सोच को पढ़ा तो वो सोच रहे थे, मैं थानेदार को ये नहीं बताऊंगा कि मेरा वो साथी फरहाद इन दिनों मेरे साथ मरी में है। काश के इस वक्त फरहाद से जहनी राब्ता कायम हो जाता। फरहाद, क्या तुम मेरे जहन में झांक रहे हो? सईद अहमद की सोच ने कबाड़ा कर दिया। मास्टर यूशे के सामने इस बात की मुकम्मल तस्दीक हो गई कि मैं इंसानों के जहनों को पढ़ना जानता हूँ। अब सईद अहमद का दिमाग ऐसा टारगेट बन गया था जिस पर निशानाबाजी करने के लिए 2 टेलीपैथी जानने वाले बिल्कुल तैयार थे। नहीं, मैं अपने दिमाग से सोच की लहरें नशर करके सईद अहमद के दिमाग तक नहीं पहुंचा सकता था। अगर ऐसा करता तो मास्टर यूशे सोच की लहरों को अपनी गिरफ्त में ले लेता। इसीलिए मैं खामोश तमाशाई की तरह सईद अहमद के दिमाग में झांकता रहा। मास्टर यूशे सईद अहमद को कंट्रोल करने के लिए वही तरीका इख्तियार कर रहा था जो कि बिल मुंडू के लिए मैंने किया। यानी जब मास्टर यूशे गहरी नींद सो रहा था तो उस वक्त मैंने मास्टर यूशे बनकर उसे एक वीरान इलाके में बुलाया और वहां उसका खात्मा किया। ठीक उसी तरह अब मास्टर यूशे मेरी सोच बनकर सईद अहमद से कह रहा था, मिस्टर सईद, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। तुमने इस माइक्रोफिल्म को किसी दूसरे अफसर के हवाले क्यों किया है? इसे फौरन वापस ले लो। सईद अहमद ने जरा हैरानी से कहा, क्या बात है फरहाद, तुम मुझे मिस्टर सईद कह रहे हो, हालांकि मुझे सईद अहमद कहा करते थे। मास्टर यूशे की सोच ने जरा मूड में आकर कहा, भाई सईद अहमद, मैं इस वक्त मूड में हूँ और इसलिए मूड में हूँ कि मेरा दुश्मन इस मुल्क में आ पहुंचा है। ऐसे खतरे के वक्त हर दिलेर इंसान को मूड में रहना चाहिए। आप फौरन मेरे मशवरे पर अमल करें और वो माइक्रोफिल्म इनसे वापस ले लें। सईद अहमद ने उस शैतान के मशवरे को मेरा मशवरा समझकर फौरन ही अमल किया और अपने सामने बैठे हुए सीनियर अफसर से कहा, देखिए हालात बदल गई हैं। ये इंस्पेक्टर साहब अभी किसी कार और कार वाले की गुमशुदगी के सिलसिले में मुझे मुलविस कर रही हैं। बेशक मेरा एक साथी इस नंबर की कार में मौजूद था, लेकिन उस साथी से बहुत अरसा बाद मुलाकात हुई थी। मैं उससे पूछ ना सका कि वो कहाँ से आ रहा है। मैंने सोचा कि इत्मीनान से बैठकर उससे उसके हालात मालूम करूंगा, लेकिन जेहलम के एक होटल में खाना खाने के बाद वो फौरन ही मुझसे रुखसत होकर लाहौर की तरफ चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि लाहौर की तरफ जाऊँ और ड्यूटी पर भी हाजिर हो जाऊँ और अपने उस साथी को भी तलाश करूँ, क्योंकि उसे तलाश करना और कानूनी तौर पर पूछगिछ करना मेरा भी फर्ज है। अब जबकि मैं लाहौर जाने का फैसला कर चुका हूँ तो आप ये रसीद लेकर वो माइक्रोफिल्म वापस कर दें। मैं उसे लाहौर के दफ्तर में डिपॉजिट कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर सीनियर अफसर ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो अपनी जगह से उठा और सेफ खोलकर वो फिल्म निकाल लाया। सईद अहमद से अपनी दी हुई रसीद वापस ली और माइक्रोफिल्म उनके हवाले कर दी। मैं बड़ी बेबसी से यह तमाशा देख रहा था जिस माइक्रोफिल्म को मैंने दिन रात की जद्दोजहद के बाद हासिल किया और बिल मुंडू जैसे खतरनाक आदमी को अपने पीछे दौड़ते रहने पर मजबूर करता रहा। अब वो फिल्म फिर हाथ से निकली जा रही थी और मैं मजबूर था। अगर ज़रा भी मुदाखलत करता, सईद अहमद को ज़रा भी इशारा देता कि वो ऐसा ना करें, तो वो ज़रा सा इशारा मेरी तबाही का बायस बन जाता, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मास्टर यूशे सईद अहमद को इसलिए घेर रहा है और इसीलिए अपना आलाकार बना रहा है कि मैं परेशान होकर किसी न किसी वक्त ज़रूर मुदाखलत करूंगा और फिर उसके हत्थे चढ़ जाऊंगा। मास्टर यूशे ने सईद अहमद को हदायत की थी कि वो एयरपोर्ट की तरफ जाएं, वहां फरहाद से मुलाकात हो जाएगी। अब सईद अहमद दफ्तर से उठकर समर को साथ लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मैं सोचता ही रह गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं हालात की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ गया था। वो सईद अहमद जो मेरे अजीज तरीन दोस्त थे,
अब वो मास्टर यूशे का आलाकार बनकर बदतरीन दुश्मन बनने वाले थे। मैंने फौरन ही फैसला किया कि मुझे वो होटल छोड़ देना चाहिए। मैंने खाना अधूरा छोड़ दिया और पैसे अदा करने के बाद अपने कमरे में आ गया। कमरा मैंने अंदर से बंद कर लिया, मास्क और कॉन्टैक्ट लेंस निकाले। इसके बाद आईने के सामने आकर मेकअप करने लगा। बूढ़े मेकअप मैन का दिया हुआ कुछ सामान मेरे पास मौजूद था। उसकी मदद से मैं जल्द ही अपने चेहरे को बदलने में कामयाब हो गया। अब सईद अहमद मुझे नहीं पहचान सकते थे। मैं बाहर एक टैक्सी में बैठ गया और उससे होटल दिलशाद की तरफ चलने के लिए कहा। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो मैं मास्टर यूशे की सोच को पढ़ने लगा। वो लगेज रूम से अपना सामान हासिल कर रहा था, साथ ही सईद अहमद से दिमागी राब्ता कायम किए हुए था और उनसे कह रहा था, सईद अहमद साहब, यहाँ लगेज रूम से एक उधेड़ उम्र का शख्स बाहर आएगा। वो नीले सूट में मलबूस है और नीले रंग की टाई लगाए हुए है। उसके साथ एक हसीन औरत है, आप उसका पीछा करें। सईद अहमद ने सोच के जरिए पूछा, फरहाद तुम कहाँ हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते? मास्टर यूशे की सोच ने कहा, मैं अभी मजबूर हूं, मेरा सबसे खतरनाक दुश्मन सर पर आ पहुंचा है। वो जो नीले रंग के सूट में मलबूस है वो मास्टर यूशे है। सईद अहमद ने चौंक कर कहा, मास्टर यूशे? फरहाद ये तुम क्या कह रहे हो? इतने खतरनाक दुश्मन से मेरा सामना करा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम ख्याल ख्वानी में उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर उसने मुझे ज़हनी अज़ाब में मुब्तला करके अपना आलाकार बनने पर मजबूर किया तो फिर क्या होगा? मास्टर यूशे ने फरहाद बनकर उसे समझाया, आप फिक्र न करें, मैं ख्याल ख्वानी में उस शैतान का मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि चुपचाप आपके ख्याल में झांकता रहूंगा और उसकी सरगर्मियों से वाकिफ होता रहूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। आप इत्मीनान रखें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा ही करते जाएं। जिस जगह वो क़याम करेगा आप भी उसी जगह ठहर जाएं। अगर उससे सामना हो जाए तो उससे कतराने की कोशिश ना करें। मास्टर यूशे फरहाद बनकर बड़ी खूबसूरती से सईद अहमद को बेवकूफ़ बना रहा था और मैं बड़ी मजबूरी से ये तमाशा देख रहा था। होटल दिलशाद में पहुंचकर मैंने वहां एक कमरा किराए पर हासिल किया और खुद को उस कमरे में कैदी बनाकर बैठ गया। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक हालात साजगार नहीं होंगे मैं इस कमरे से नहीं निकलूंगा। उस वक्त चूंकि मास्टर यूशे मुसलसल सईद अहमद के जहन में झांक रहा था, इसलिए मैं अपनी जगह खामोश बैठा हुआ सिर्फ उसकी सोच को पढ़ सकता था। उस वक्त सईद अहमद के साथ खड़ी हुई समर ने उनसे कहा, आप मेरे साथ पागल खाने के लिए निकले थे। रास्ते में इरादा बदलकर इंटेलिजेंस के दफ्तर चले गए, वहां से फिर प्रोग्राम बदलकर एयरपोर्ट की तरफ लौट गए। अब यहाँ लगेज रूम के सामने खड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है। आपने तो कहा था कि फरहाद भाई डैडी के पागलपन को दूर कर देंगे। क्या आप नहीं चाहते कि हम जल्द अज जल्द पागल खाने पहुंचें और मेरे डैडी जहनी तौर पर सेहतयाब हो जाएं? सईद अहमद ने बड़ी मोहब्बत से समर से कहा, घबराओ नहीं समर, तुम्हारे डैडी जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। मैं इस वक्त अपने फ़राइज़ से मजबूर हूँ। यहाँ एक मुजरिम की तलाश में आया हूँ। अगर वो मिल गया तो मैं उसका पीछा करूँगा। हम देखेंगे कि वो कहाँ जाता है। जब उसकी क़यामगाह का इल्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें लेकर पागल खाने जाऊँगा। ये कहकर सईद अहमद बड़ी तवज्जो से लगेज रूम की तरफ देखने लगे। एक उधेड़ उम्र का अंग्रेज़ नीले सूट में मलबूस वहाँ से बाहर आ रहा था। उसके साथ एक जवान औरत थी। उस औरत का जोग्राफिया क्या था ये मैं मालूम न कर सका, क्योंकि सईद अहमद की तवज्जो मास्टर यूशे पर थी। मास्टर यूशे भी अपनी साथी औरत को नज़रअंदाज किए हुए था और उसके साथ जो औरत थी वो भी मास्टर यूशे को मुखातिब नहीं कर रही थी। मास्टर यूशे ने एक टैक्सी वाले से इंटरकॉन की तरफ जाने के लिए कहा और अपनी साथी औरत के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया। तमाम सामान डिग्गी में रखवा दिया। फिर टैक्सी आगे बढ़ गई। उस वक्त उसने सोच के जरिए कहा, बेटे फरहाद, मैं इतना नादान नहीं हूँ। इस बात को समझ रहा हूँ कि तुम बील मुंडू के जरिए मेरी सोच तक पहुँच चुके हो और हमेशा मेरे मंसूबों को पढ़ते रहे हो। अब ये बात समझ में आ गई है कि तुम बील मुंडू के हमलों से किस तरह बच जाया करते थे, यानी मेरी ही सोच के जरिए उसके तमाम मंसूबों से बच निकलते थे। अब भी मुझे यकीन है कि तुम मेरी सोच को मुसलसल पढ़े जा रहे हो और ये देखे जा रहे हो कि मैं तुम्हारे सबसे अजीज़ दोस्त सईद अहमद को किस तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम बहुत मजबूर हो, उसे ये नहीं समझा सकते कि वो मेरा आलाकार बन चुका है, मगर कब तक तुम खामोश तमाशाई की तरह छुपे रहोगे? तुम्हें मुझसे टकराना होगा। नहीं टकराओगे तो सईद अहमद और समर को सिसक सिसक कर मरते देखोगे। मैं तुम्हें इत्तला के लिए भी कह दूं कि तुम मेरे किसी भी मंसूबे को अब नहीं पढ़ सकोगे, क्योंकि अब मैं अपनी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी में कभी नहीं सोचूंगा। जब मुझे मंसूबा बनाना होगा तो मैं अजनबी ज़ुबान में सोचूंगा और अपनी साथी से उसी ज़ुबान में गुफ्तगू करूंगा। लो सुनो, मैं अपनी साथी औरत को हदायत दे रहा हूँ, समझ सकते हो तो समझ लो। ये कहकर वो अपनी साथी औरत से मुखातिब हुआ। वाकई वो ऐसी ज़ुबान बोल रहा था जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था। मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा कि वो क्या बोल रहा है।
लेकिन उससे बातें करने के दौरान ये पता चल गया कि वो उसे मादाम कहकर मुखातिब करता है। मादाम तो ऐसी औरत को कहा जाता है जो सोसाइटी में बहुत बाइज्जत हो, या फिर कोई बॉस किस्म की औरत हो, या कोई ज़बरदस्त सलाहियत की मालिक हो, यानी उस औरत की कोई ख़ास अहमियत थी। तभी मास्टर यूशे उसे मादाम कहकर मुखातिब कर रहा था। मेरी समझ में यही आया कि 4 मास्टरों के दरमियान कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो ख़ास सलाहियतों की मालिक हैं। उनमें से एक ये मादाम है जो इस वक्त बज़ाहिर एक साथी बनकर मास्टर यूशे के साथ यहाँ आई है, लेकिन वो भी किसी न किसी तरह मुझे घेरने की कोशिश करेगी, लिहाजा मुझे उसकी तरफ से भी मोहतात रहना पड़ेगा। कुछ देर तक मादाम से गुफ्तगू करते रहने के बाद मास्टर यूशे ने अंग्रेजी ज़ुबान में सोचकर कहा, कहो फरहाद, कुछ समझ में आया कि मैंने क्या बातें की हैं? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम ये बातें नहीं समझ सकते। अब तुम बराबर मेरे जहन में झांकते रहो, फिर भी मेरी सोच के जरिए कोई फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर दिमाग के खिलाड़ी मौजूद हैं जो हर वक्त अपनी जहानत को इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। इस वक्त मास्टर यूशे ने भी मेरे सामने एक अजनबी जुबान की दीवार खड़ी कर दी थी। दूसरे लफ्ज़ों में वो मेरे लिए गूंगा बन गया था। अब मेरा काम यही रह गया था कि चुपचाप दिमाग की स्क्रीन पर उनके तमाशे देखता रहूं। आध घंटे बाद वो इंटरकॉन में अपने और मादाम के लिए 2 कमरे हासिल कर चुका था और अपने कमरे में बैठा सईद अहमद को गाइड कर रहा था। सईद अहमद भी उसका पीछा करते हुए उस होटल तक पहुंच गए। अब इस इंतज़ार में थे कि मैं मास्टर यूशे के सिलसिले में कुछ मशवरा दे सकूं। मैं क्या मशवरा देता, वो तो अब तक मास्टर यूशे के हाथों में नाचते रहे थे। मास्टर यूशे ने सोच के जरिए उनसे कहा, सईद साहब, अब आप काउंटर पर जाकर मास्टर यूशे के कमरे का नंबर मालूम करें और फिर कमरे में जाकर उसका पासपोर्ट वगैरह तलब करें और ये देखें कि वो किस तरह यहाँ आया है, यानी किस नाम से आया है और किस मकसद के लिए यहाँ आया है। सईद अहमद ने ज़रा परेशान होकर कहा, फरहाद, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने खतरनाक शैतान से इस तरह क्यों टकराना चाहते हो। मास्टर यूशे ने सोचकर कहा, सईद साहब, आप परेशान ना हो, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब मैं ज़्यादा दिनों तक इस शैतान से दूर नहीं भाग सकता। एक न एक दिन तो मुझे उससे टकराना ही था, लिहाजा आज ये टकराव हो जाए। आप बेफिक्र रहें, आपको मेरी सलाहियतों पर एतमाद करना चाहिए। मैं उस शैतान से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मगर फरहाद, ये तो सोचो, इस वक्त मेरे साथ समर है, मैं उसकी मौजूदगी में किसी खतरे का सामना कैसे कर सकता हूँ। आप समर की फिक्र न करें, उसे गैलरी में बैठने के लिए कहें, वो कोई ठंडा मशरूब पीती रहेगी। जल्दी मास्टर यूशे तक पहुँचने की कोशिश करें। सईद साहब ने उसके मशवरे पर अमल किया। उन्होंने समर से जाकर कहा कि वो गैलरी में जाकर उनका इंतज़ार करे, वो थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाएंगे। समर गैलरी की तरफ चली गई और सईद साहब काउंटर पर जाकर उस अंग्रेज़ का नाम और कमरा मालूम करने लगे जो नीले रंग के सूट में मलबूस था और एक औरत के साथ रिसेप्शन रूम से होकर गुजरा। उसका कमरा नंबर मालूम करने के बाद वो लिफ्ट के जरिए 3री मंजिल पर पहुंच गए और वहां जाकर इसके दरवाजे पर दस्तक दी। मास्टर यूशे उनके इंतजार में बैठा हुआ था। दस्तक सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया। पहले तो अनजान बनकर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। सईद अहमद कमरे में दाखिल हो गए। वो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की हैसियत से अपना तारुफ कराना चाहते थे, मगर इस तारुफ से पहले ही मास्टर यूशे ने दरवाजे को अंदर से बंद करके मुस्कुरा कर कहा, सईद साहब, तारुफ की क्या ज़रूरत है? तारुफ तो 2 अजनबियों के दरमियान होता है और हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। क्या आप मुझे नहीं जानते? सईद अहमद चौंक कर हैरानी और परेशानी से उसे देखने लगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मास्टर यूशे ने कहका लगाते हुए कहा, सईद साहब, ज़रा आराम से बैठिए ताकि इत्मीनान से गुफ्तगू हो सके। सईद अहमद ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मास्टर यूशे ने बदस्तूर इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आप ख्वामखा गुस्सा दिखा रही हैं। मैं आपके मुल्क में मेहमान हूं। क्या मेहमानों से इसी तरह गुफ्तगू करते हैं? उन्होंने गुस्से में कहा, तुम मेहमान नहीं शैतान हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम ये बताओ कि तुम मुझे किस तरह जानते हो? मास्टर यूशे ने फिर एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तक आप इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू ना करेंगे मुझसे अपने सवाल का जवाब नहीं पाएंगे। अगर आप अपने अफसराना रोब और दबदबे से काम लेना चाहती हैं तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके देख लें, कोई फ़ायदा ना होगा। सईद अहमद ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लेना चाहते थे, मगर इससे पहले ही मास्टर यूशे उनकी सोच से उनके इरादे को समझ चुका था। जैसे ही वो गिरबान पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अचानक उसने उनके दिमाग में घुंसा सा मार दिया। वो लड़खड़ा कर एकदम से पीछे गई। उस वक्त मास्टर यूशे ने उनकी सोच में कहा, मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे पीछे गहरी खड्ड है, मैं गिर रहा हूँ। इस सोच के साथ ही वो पीछे की तरफ गिर पड़े। मास्टर यूशे बराबर कहता जा रहा था, मैं दाएं तरफ लुढ़कता जा रहा हूँ। वो दाएं तरफ लुढ़कते गए। इसी तरह वो मास्टर यूशे की सोच के मुताबिक बाएं तरफ उलट पलट होते गए।
थोड़ी देर तक वो उन्हें इसी तरह परेशान करता रहा, फिर वो खामोश हो गया। इसके साथ ही सईद साहब भी फर्श पर लेटे लेटे बेहिस्सो हरकत होकर हाँफने लगे। थोड़ी देर तक उनकी समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया है। फिर वो जल्द ही हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने सामने खड़े मास्टर यूशे को वहशत ज़दा नज़रों से देखने लगे। मास्टर यूशे ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर सईद, ये मेरे कमालात का एक छोटा सा नमूना है। फरहाद से तुम्हारी दोस्ती है, लिहाजा उसने तुम्हें बताया होगा कि मैं किस तरह अपने इल्म के जरिए तुम्हें पागल बना सकता हूं। तुम कानून का सहारा लेना चाहोगे, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहोगे, तो मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी गफलत से फ़ायदा उठाकर मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़हनी अजाब में मुब्तला कर दूंगा। अगर तुम अभी इत्मीनान से बातें कर सकते हो तो उठो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, वरना याद रखो कि तुम्हारी महबूबा इस वक्त गैलरी में मौजूद है। सुना है कि मशरिक की लड़कियां बड़ी बाहया होती हैं, अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाती। मैं यहाँ से बैठे बैठे उसे मजबूर करूंगा कि वो तमाम होटल में नाचती फिरे। क्या तुम अपनी महबूबा की बेहयाई पसंद करोगे? सईद अहमद दीदे फाड़ फाड़ कर उसे बड़ी बेबसी से देख रहे थे। वो और कर भी क्या सकते थे। वो चुपचाप फर्श पर से उठ गए और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मास्टर यूशे ने अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, लाइए वो माइक्रोफिल्म मुझे दीजिए। उस वक्त सईद साहब को पहली बार मुझ पर गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि फरहाद ने मुझे क्यों यह मशवरा दिया कि मैं माइक्रोफिल्म वापस लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाऊं और मास्टर यूशे का सामना करूं। अब मैं सईद साहब को ये कैसे समझा सकता था कि वो मशवरा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं मायूस नहीं था, अपने वक्त का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ मास्टर यूशे सईद अहमद को सोचते हुए सुन रहा था। उसने फिर मेरे खिलाफ चाल चली। वो सईद अहमद से कहने लगे, मिस्टर सईद, तुम फरहाद को अपना बहुत ही अजीज दोस्त समझते हो, लेकिन वो बड़ा मतलब परस्त है। अपने मुफाद के सामने वो दोस्ती को खातिर में नहीं लाता, अपने दोस्तों को भी जहन्नुम में झोंक देता है। इसकी जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है। तुम खुद एक खतरे को दावत देने के लिए मेरे पास चले आए। मैं बहुत देर से तुम्हारे जहन को पढ़ रहा हूँ और खामोशी से ये देखता रहा हूँ कि फरहाद किस तरह तुम्हारी गलत रहनुमाई कर रहा था। जब तुम इस कमरे में आए तो मैंने तुम पर यह जाहिर कर दिया कि ना मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और ना ही तुम मेरे लिए अजनबी हो। अब तुम ठंडे दिमाग से गौर करो कि फरहाद ने तुम्हें और तुम्हारी महबूबा को किस मुसीबत में फंसाया है। सईद अहमद का दिमाग उसकी बातों में उलझ कर रह गया। उसके सोचने समझने की अपनी तमाम सलाहियतें बिल्कुल ही बेकार होकर रह गईं। थोड़ी देर बाद वो मास्टर यूशे की बातों से कायल हो गए। उन्होंने जेब में हाथ डालकर माइक्रोफिल्म निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। वाकई मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फरहाद मुझे इस तरह मुसीबत में फंसाएगा। बहरहाल मैंने ज़बरदस्त धोखा खाया है। ये माइक्रोफिल्म वही हासिल करके लाया था और इसी माइक्रोफिल्म के ज़रिया वो मुझे यहाँ पहुँचाकर खुद खामोश बैठा हुआ है। अब मैं एक फ़र्ज शनास ऑफिसर की हैसियत से तुमसे ये कहूँगा कि यह माइक्रोफिल्म तुम फिर मुझे वापस कर दो, इसलिए कि ये मेरे मुल्क की चीज़ है और मैं ये कभी गवारा नहीं करूँगा कि ये गलत हाथों में जाए। मास्टर यूशे ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम किस हद तक फ़र्ज शनास हो, तुम किस हद तक मुहिब्बे वतन हो। इस माइक्रोफिल्म को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। मैं इस फिल्म के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मास्टर यूशे ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ फरहाद को चाहता हूँ। तुम मुझे फरहाद का पता बता दो और ये माइक्रोफिल्म वापस ले लो। ये कहकर उसने माइक्रोफिल्म को दरमियानी मेज़ पर रख दिया। सईद अहमद फिल्म को देखते हुए सोचने लगे, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं फरहाद का पता बता दूं? ये सोचते ही वो कुर्सी पर पहलू बदलने लगे। मेरे खलूस और मेरी दोस्ती की बहुत सी बातें याद आ रही थीं। उन्होंने बड़ी बेबसी से मास्टर यूशे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे कुछ सोचने का मौका दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। मास्टर यूशे ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या सोचोगे? जो सोचोगे उसे मैं पढ़ता जाऊंगा। उसने तुम्हारे साथ फरेब किया है, अक्ल से काम लो और मुझे उसका पता बता दो। उस वक्त सईद अहमद ने एक अहम सवाल किया, मैं जानता हूं कि फरहाद तुम्हारी सोच को पढ़ता रहता है। क्या वो इस वक्त हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा? अगर मैं उसका पता बताऊंगा तो क्या वो होशियार नहीं हो जाएगा? मास्टर यूशे ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ, इतना नादान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उसका पता बताओगे तो वो अभी से होशियार हो जाएगा और वहां से किसी दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में तुरप चाल के लिए एक पत्ता है, मैं उस पत्ते से काम लूंगा। तुम इस बात की परवाह ना करो कि वो मुझे अभी कितनी दूर दौड़ाएगा। तुम मुझे उसका पता बताओ और हर उस जगह की रहनुमाई करो जहां वो जा सकता है। सईद अहमद फिर थोड़ी देर तक सोचते रहे। आखिर मजबूर होकर उन्होंने बता दिया कि जब वो मरी से रवाना हुए थे तो मैं फिरोज़ा के कॉटेज में था। उनकी बातें सुनकर मास्टर यूशे ने कहा, अच्छी बात है,
ہم تھوڑی دیر بعد اس کاٹیج کی طرف جائیں گے۔ ابھی میں دوستانہ انداز میں آپ کو ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ سعید احمد نے کہا، ہاں ضرور کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ ماسٹر یوشے نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک سیر کچے گوشت کی ضرورت ہے۔ گوشت میں ہڈیاں زیادہ ہوں تو بہتر ہے۔ میں یہاں اجنبی ہوں، یہاں کے راستے جانتا نہیں ہوں، ورنہ بازار جا کر خود ہی خرید کر لے آتا۔ کیا آپ یہ چیزیں میرے لیے خرید کر لا سکتی ہیں؟ سعید احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ تمہارا کام کر دوں گا، لیکن مجھے مائکرو فلم جلد از جلد ملنی چاہیے۔ ماسٹر یوشے نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ اس پر سعید احمد نے کہا، میرے سامنے ایک اور مسئلہ ہے۔ میں ابھی پاگل خانے کی طرف جا رہا تھا۔ فرحاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمر کے ڈیڈی کا پاگل پن دور کر دے گا۔ اب یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، فرحاد اس پاگل کا پاگل پن کیا دور کرے گا؟ یہ کام میں چٹکی بجاتے کر سکتا ہوں۔ تم سمر سے کہو وہ تنہا پاگل خانے جائے اور اپنے ڈیڈی سے ملاقات کرے۔ جب وہ اپنے ڈیڈی کا سامنا کرے گی تو میں اس کے ذہن سے چھلانگ لگا کر اس کے ڈیڈی کے پاگل پن تک پہنچ جاؤں گا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے میں اسے کس طرح ذہنی طور پر صحت یاب کرتا ہوں۔ سعید احمد مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے اور اس گیلری کی طرف جانے لگے جہاں سمر بیٹھی ہوئی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ماسٹر یوشے کی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس نے میرا پتہ معلوم کرنے کے بعد ایک سیر کچا گوشت کیوں منگوایا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔